2011. And later on, he moved to Asian Institute of Technology, Bangkok, and he did his PhD in structural engineering in 2017. Right now, he's serving as an assistant professor in Department of Structural Engineering in NIST, and he is quite active on social media, and he's written many blogs regarding earthquake hazards in Pakistan. He has authored dozens of research papers on the topic of earthquake engineering and seismic hazard assessment, and he has his own educational channel on YouTube as well by the name of Understanding Structures with Fawad Najam. And he has his own website, structurespro.info, in which he is publishing a lot of informative material, presentations, and publications regarding earthquake hazards. His current research interests include earthquake engineering, seismic hazard vulnerability and risk assessment. He has worked on various earthquake risk reduction strategies and proposed certain earthquake risk management strategies. Currently, he's also now a part of committee which is revising Building Code of Pakistan, and he has been in charge of formulating the seismic hazard maps of all over Pakistan, and which will be incorporated soon in the upcoming revisions in the Building Code of Pakistan. So more details are available with Dr. Fawad, and he will share his, as you can see the screen, he shared his email, and you can also contact him on social media and many other platforms. So now I hope all of you students have gone through the previous lectures, and that was fact-based and very much basics about seismology and seismic hazards. And he'll be continuing his lecture on probabilistic hazard assessment. So before we begin on the future, on the next lecture, I would like to open the floor for questions for the students to ask if they have any questions regarding previous lectures, which were already uploaded 2 days back. And I hope you have gone through it. So I would request the students now, if they have any questions regarding previous lectures, this is the time to ask now. So yes, students, if they have any question regarding previous lectures, please raise your hand. Okay, so I think I would request Dr. Fawad to just recall 5 minutes or 10 minutes lecture of the previous lecture. You can recall that, and if that prompts any questions in the mind of the students, they can uh, ask you. So Sir, please, sir, Dr. your Fawad. voice was distorting. Kindly please repeat. Okay, I so couldn't hear you. okay, so I'm thinking that maybe you should have a 5 minute recap session on the previous Right, lecture which you right. uploaded. And if they have any Okay. questions, students can raise their hands and ask the question. Right, right. Yes. So now the stage is yours. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I will quickly have a summary of what um I discussed in last 2 or 3 sessions or those videos which I just uploaded. So let me have a quick recap of all of that, kind of an informatory session. So let me open those slides and then I can just quickly recap.
Okay, so is my screen visible? And Yes, am I sir. clearly audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, you are. Right. So the first session was about the introduction and causes of earthquakes, in which I tried to explain the state of the art information about what we know currently about the causes of sudden ground shakings, which we understand as earthquakes. So the basic idea was about the theory of plate tectonics, which is one of the major advancements in science or earth sciences in this 20th century. This theory, in fact, explains the internal structure of Earth, and that internal structure uh, can be studied, and then the causes of the earthquakes and other geological phenomena can be understood in the light of that. So the basic idea is that the Earth's crust, or the topmost surface of Earth, that is itself comprised of a thick slab of, you can say, several plates which are interacting. They are floating on what I call as the ocean of molten rocks. So let me directly go to that point, which is important. All of that discussion, you may check that in the video lectures which I uploaded. So I will directly go to the idea that uh, the Earth's topmost surface is comprised of several major tectonic plates. So that topmost surface have an average thickness of around 80 kilometers, and that is very less compared to the overall diameter of Earth, which is around 12800 kilometers. So 12,800 kilometer is the overall diameter of Earth, and the topmost surface, which is made of solid rocks or these tectonic plates, it has a thickness of around 80 kilometers. At some places it is low, around 40 to 50 kilometer. At certain places it is more than 80, but on average, this is the average thickness of these plates. And these plates are kind of moving or floating on top of a lower layer of earth, which we call as mantle, and that mantle is comprised of highly pressurized molten rocks. So let me, okay, so this is the topmost layer, the crust on top, and then we have mantle, several layers of mantle. Depending upon their properties, they are classified. And then we have the core, which itself again is having two parts. One is liquid and one is solid. Core is comprised of molten, mostly molten iron and nickel, and some other metals also. And that's why we have the Earth's magnetic field also, because we have the core itself comprising of heavy metals. The inner core is solid, although the temperature is almost equal to the surface of sun, but still due to high pressure, the rocks are still solid and not in liquid state. The total size of the core itself is almost equal to our moon, uh, and then we have this mantle and top crust. So compared to the overall diameter, this crust is very thin. So we are living on a very fragile layer of solid rock, which is just floating on molten rocks or an ocean of molten rocks. Sometimes, I mean, all of the land or mountainous ranges or oceans, whatever we can see, what we know of Earth is actually crust. So crust comprises all the oceans. In fact, all the oceans are just on that crust. All the mountainous ranges, all the cities, countries, they are on that crust. And that crust itself is very thin compared to the overall diameter. So the idea is that
there are several currents, or you can say waves, which are slowly moving in that ocean of liquid rocks here in the lower layer mantle. And those waves are powered by, in fact, their movement is powered by the heat energy coming from the core. So we know already the process of convection. When we heat any particular liquid, for example, we know this experiment from basic science, that if we heat a particular, you can say, uh, water, for example, the high temperature water will just go up because it will be less dense compared to the cold water, and cold water will just come down, and this process will continue, and this process of you can say heat driven movement, this process is called convection. Exactly the same phenomena is here also in the mantle, that all those rocks, I think I have a figure for that also, okay, here. So all those molten rocks which are close to the core of earth, they just want to go up, and all those relatively cooler rocks want to go down. So this basically builds a movement or continuous current or a wave in these oceans of liquid rocks. So just imagine now the whole scenario, that we have several slabs of rocks, which are basically these tectonic plates. They are resting on an ocean of liquid rock, and there are waves in that ocean. So they just follow the movement, and and by the way, the speed of those waves is very less, like 1 centimeter per year. Or the process of convection results in the movement of those liquid rocks, but that movement is very slow, 1 centimeter per year or 2 centimeter per year. So the crust, the plates itself, they are just carried along with those movements, and therefore the plates also move very slowly. So if we take around, for example, a particular time duration of around 1000 in the history, 1000 years, we will see the plates moving in a particular direction from the surface with a very slow speed, like few centimeter per year. So since this convection process is very slow, so you can expect that for hundreds and thousands of years, the plate movement will be just in one direction. It will be just continue in that direction for thousands of years. And this is a continuous process. That plate movement is ideally, now we know that it is originally generated or powered by the heat energy in the core. So as long as we have the heat energy in core, this process is continuous. So it is there for millions of years, and it will remain there for next millions of years. Now wherever these two plates interact, um, and whenever their movement is not in one direction, whenever there is a differential movement, they may stuck due to friction, or they may just bump into each other. They may just slide past each other, and then due to friction they may stuck. So they store energy when they interact, and that energy is released when the force of movement is more than the friction which is there in the surface of the plate. So that release of energy we experience as earthquakes. It causes an elastic wave in the Earth's crust, and that wave passes in that crust as disturbance. That disturbance or push-pull or up-down movement, it just travels from cities to cities from the center of that slip or rupture, and then this is what we experience as earthquakes. So this was the overall idea about this first lecture, the causes of earthquakes. If you may have any questions, you may just raise your hands and I can answer any questions or queries or whatever is in your mind, you can share. Yes, Taha, please. Okay, sir, my question is,
that I understand that the crust, the movement of tectonic plates is due to the oceans of rocks, molten rocks, as you say. But I don't understand that why is that crust divided into a certain number of plates? Why isn't it like a one unit, a whole unit? Yes, the process of formation of that crust is very interesting. The topmost surface for millions of years was bombarded by several comets or several, you can say, terrestrial objects, and those were carrying water. So the water which we see on Earth's oceans now is not there. It was not there right from start. It just came with several comets containing ice and water, which was trapped in them, and then we have these oceans, and then that water is having that source. That resulted in the slow cooling of that topmost surface. So just keep that overall history of Earth in mind also, that once all of that matter was having a temperature which is same as Earth's sun's surface, more than 6,000 degrees centigrade, and then it cooled down. In that process of that cooling down, you can imagine now that you cannot expect the formation of that relatively cooler rock, which is just one continuous egg shell, for example. You may expect that due to that cooling process, these solid slabs of rock, they are just divided into, you may expect different cracks running along the surface, dividing different plates. So it's not a, you can say, a uniformly distributed process, that cooling of the topmost surface of Earth. So the formation is like that you can think of the whole of the surface as comprising of several plates. If it was a uniform cooling process, you may expect that, okay, the whole topmost surface is just one big shell, just like shell of egg on its surface. But it was not a uniform process. It was an irregular process and mostly governed by different cooling agents. Most of them were not originally belonging to the materials which ultimately formed Earth. They were coming from different comets and other terrestrial objects. The period for which there were the space was not clear, and there were heavy bombardment on Earth's surface from these objects. And by the way, that period ranged from millions of years, and that is called the period of heavy bombardment. So that's why I'm using exactly the same word. The period of heavy bombardment means that it is a you can say time in Earth's history where it was being bombarded by several extra terrestrial objects, including comets and some other rocks which have trapped water in it. So that's why we have, and this is a process for any formation of any planet. I mean, there is plate tectonics on other rocky planets also. So no planet have one continuous topmost rocky surface. Is it clear, or yes, please? Okay, maybe Yes, one by one. Yes, thank you. Any other question? Okay, Rida raised her hand, please. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन ये था कि सर आपने बताया कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनकी मूवमेंट से ये जब कोलाइड करते हैं आपस में तो फिर जो है वो एनर्जी रिलीज होती है और फिर अर्थक्वेक आता है। इसी तरह से सर यही बताया ना आपने? नहीं, ऐसा नहीं है। कोलाइड करने से एनर्जी रिलीज नहीं होती।
यानी कोलाइड का वर्ड आप इस तरह ले सकते हैं कि जैसे ये आपस में कोलाइडिंग सिनारियो में होते हैं और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर ये उसी सिनारियो में रहते हैं। यानी ये प्लेट्स जो हैं इनकी मूवमेंट इतनी स्लो है कि 1 सेंटीमीटर पर ईयर का क्या मतलब है, एक दूसरे की तरफ ये 1 सेंटीमीटर पर ईयर से मूव कर रहे हैं या कोलाइड कर रहे हैं। अब ये कोलिजन तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर जारी रहेगा अनटिल के कोई एकदम स्लिप हो जाए, इनमें से कोई एक प्लेट हार मान जाए, वो ब्रेक कर जाए और सडनली स्लिप हो जाए। इसी तरह अगर दो प्लेट्स इफ दे आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, एक दूसरे में बम्प नहीं कर रहे बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शंस में स्लिप कर रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज एनर्जी इस तरह स्टोर होगी कि वो अलोंग द डेप्थ जो कि 80 to 100 किलोमीटर हो सकती है, अलोंग द डेप्थ किसी वजह से वो स्टक हो जाए, मूवमेंट रुक जाए और फिर उसके बाद वो स्टक हुए रहेंगे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर, वो रुके रहेंगे वहाँ पे। वो फ्रिक्शन एक दिन सडनली ओवरकम होगी और वो स्लिप हो जाएंगी दोनों प्लेट्स और एक नई पोजीशन पे आ जाएंगी। तो ये सिनारियो उनके इंटरेक्ट करने से मुराद ये नहीं कि वो आपस में टकराएंगे और एनर्जी रिलीज होगी, बल्कि वो टकरा के काफ़ी अरसा एनर्जी स्टोर करते रहेंगे और फिर एक दिन सडनली जब उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा फोर्स जमा हो जाएगी तो वो स्लिप करके नई पोजीशन पे चली जाएंगी और वो नई पोजीशन पे जाने से एक सडन इलास्टिक वेव या डिस्टरबेंस क्रिएट होगी क्रस्ट में, जो उस पॉइंट से चारों तरफ ट्रैवल करेगी और जो भी रास्ते में सिटीज़ या कंट्रीज आएंगे वो शेकिंग फील करेंगे। ओके सर। सर मैं थोड़ा सा, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो स्लाइड करते हैं और फिर उसकी वजह से मतलब नई न्यू पोजीशन में आ जाते हैं तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। तो सर मैं एक्चुअली पूछना चाह रही थी, तो सर ये जो हम जोन्स बनाते हैं किसी सिटी में या किसी कंट्री में कि यहाँ यहाँ पर अर्थक्वेक हो सकता है, या मतलब, तो सर मैं ऐसे में पूछना चाहती थी कि हम किस तरह से बनाते हैं मतलब ये जोन्स। फॉर एग्जांपल सर, ये स्लाइड मतलब कहीं पर भी किसी भी टाइम मतलब हो सकती है, किसी भी पार्ट ऑफ द अर्थ में ये स्लाइड्स कर सकते हैं और इस तरह पोजीशन चेंज हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये किसी भी जगह पे नहीं हो सकती। ये अर्थ में कुछ ख़ास जगहों पर ही फिनोमेना होता है, अर्थक्वेक का फिनोमेना। वो जगह मोस्टली प्लेट्स की बाउंड्रीज होती हैं। सो ये अगर आप ये फिगर अभी जो आपके सामने आ रही है इसमें अगर आप देखें तो ये कुछ बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं जो सरफेस बना रही हैं। आप इमेजिन करें कि ये कर्व्ड सरफेस है, ग्लोब है, और उस ग्लोब के ऊपर बड़े बड़े पीसेस हैं जो आपस में एक बिल्कुल जिगसा पजल की तरह जुड़े हुए हैं। कोई जगह खाली नहीं है, सारी सॉलिड सरफेस है लेकिन वो क्रैक्स उनमें से गुजर रहे हैं और बड़े बड़े पीसेस हैं। सो सिर्फ इन्हीं जगहों पे जहाँ पे ये प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं, 90% ऑफ द अर्थक्वेक, मोर देन दैट, इन्हीं बाउंड्रीज पे आते हैं। तो अब आप अगर एक कंट्री हैं तो आप बड़े अनलकी होंगे अगर आपका कंट्री इन किसी लाइंस में से किसी एक के ऊपर लाई कर रहा है, क्योंकि फिर आपके कंट्री को ये अर्थक्वेक का हैजर्ड से सामना होगा, वरना नहीं होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल इसी फिगर में देखें तो ये सारा का सारा अफ्रीका एक प्लेट पर है जिसको अफ्रीकन प्लेट कहते हैं। ये एक ही प्लेट पे है, ये उस प्लेट की बाउंड्री है जो डार्क कलर में है, रेडिश से कलर में। सो विच मीन्स कि अफ्रीका को इतना खास खतरा नहीं है बिकॉज मोस्ट ऑफ इट वो एक प्लेट के ऊपर है, किसी कोई बाउंड्री उसके अंदर से नहीं गुजर रही। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनके सेंटर में से बाउंड्री पास कर रही है। सो आप बड़े अनलकी होंगे अगर आप दो प्लेट्स की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, और बहुत ही अनलकी होंगे अगर आप 3 प्लेट्स की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं। और पाकिस्तान का केस यही है कि हम 3 प्लेट्स की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं ऑलमोस्ट। ज़्यादा क्लियर पिक्चर आई थिंक आपको यहाँ मिलेगी आगे। ये देखें, हाफ पार्ट ऑफ द कंट्री इज ऑन वन टेक्टोनिक प्लेट जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, इंडियन प्लेट भी कह देते हैं बट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और हाफ पार्ट ऑफ द कंट्री एक और प्लेट पे है जिसको यूरेशियन प्लेट कहते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, और फिर यहाँ पर टुवर्ड्स द साउथ एक और प्लेट है जो अरेबियन प्लेट है।
तो ये जो येलो लाइन पास कर रही है पाकिस्तान के सेंटर में से, ये प्लेट बाउंड्री है बिटवीन दीज टू प्लेट्स, और आगे जाके फिर ये 3 प्लेट्स की बाउंड्री बन जाती है। ये अरेबियन प्लेट साउथ में, जिसके ऊपर मोस्टली यूएई वगैरह है, ओमान है, और यूरेशियन प्लेट जिस पे मोस्ट ऑफ यूरोप और चाइना का कुछ हिस्सा, और फिर उसके बाद हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, और आधा कंट्री इंडियन प्लेट पर है, और इंडियन प्लेट पर फिर आगे जाके ऑस्ट्रेलिया भी लाए करता है नीचे जाके। तो हमारा जो साइज्मोटेक्टोनिक एनवायरनमेंट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कम कंट्रीज का ऐसा होता है। हर तरह का एनवायरनमेंट हमारे यहाँ मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इनकी प्लेट्स की मूवमेंट्स, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ डायरेक्टली कोलिजन में है, यानी यूरेशियन प्लेट इस तरह है, इंडियन प्लेट इस तरह है, और इनका रफली 1 to 2 सेंटीमीटर पर ईयर इनका कन्वर्जेंस का रेट है। और इस टकराव ने, जो कि पिछले 65 मिलियंस ऑफ ईयर्स से जारी है, इस कोलिजन ने हिमालयन रेंज प्रोड्यूस की हैं। बिकॉज ना इंडियन प्लेट इतनी कमज़ोर है कि वो यूरेशियन के नीचे सबडक्ट कर जाए। बिकॉज आपने आई थिंक लेक्चर अगर देखा होगा तो उसमें एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है कि कई सिनारियो हो सकते हैं, दो प्लेट्स आपस में अगर टकरा रही हैं, उनकी मूवमेंट इस तरह की है कि वो आपस में कोलिजन में है, तो उस सूरत में क्या होगा कि जो वीकर प्लेट होगी वो स्ट्रॉन्गर के नीचे सबडक्ट कर जाएगी, उसके नीचे यूं समझ लें डूब जाएगी मोल्टन रॉक्स के ओशन के अंदर। और ये हमें कैसे पता है? बिकॉज जो मेंटल है, जो निचली लेयर है अर्थ की, उसमें हमें अगर उस एक्सरे स्टडीज़ ने और लेटेस्ट रिसर्च ने बताया है कि उसके अंदर हमारी पुरानी क्रस्ट की लेयर्स ऑलरेडी डूबी हुई हैं और वो डिजॉल्व हो जाती हैं अंदर जाके। विच मीन्स कि जब भी अर्थ की सरफेस पे दो प्लेट्स आपस में डायरेक्ट कोलिजन स्टेज में होती हैं, तो जो स्ट्रॉन्गर प्लेट होती है वो रहती है, वीकर प्लेट उसके नीचे जो है वो डूब जाती है, एक तरह की स्लो मूवमेंट करती करती डूबती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। इस प्रोसेस को कहते हैं सबडक्शन। सबडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों ही प्लेट्स बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और इनके टकराव से एक हिमालयन रेंज प्रोड्यूस हुआ, एक क्रस्ट जो है वो ऊपर को उठती जा रही है। यानी आमतौर पे जैसे कहा जाता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो हर साल 2-3 सेंटीमीटर और ऊंचा हो जाता है, बिकॉज दोनों तरफ की जो प्लेट्स हैं वो आपस में बराह रास्त कोलिजन में है, तो वो क्रस्ट को मजीद उठा देते हैं थोड़ा सा। साउथ में अगर आप आ जाएं तो अरेबियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, जिससे एक एरिया जिसको हम कहते हैं मकरान सबडक्शन जोन, कि यहाँ पर अरेबियन प्लेट इस डायरेक्शन में है 23 मिलीमीटर पर ईयर, जबकि यूरेशियन प्लेट इस तरह है। तो ये अरेबियन प्लेट सबडक्ट होना शुरू हो गई है, या इसके आहिस्ता आहिस्ता नीचे डूबती जा रही है। और जब भी दो प्लेट बाउंड्रीज आपस में एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, यानी क्रैक इस तरह होता है कि वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो नीचे से मैग्मा ऊपर आके नई क्रस्ट बना देता है, सॉलिडिफाई हो जाता है और नई क्रस्ट बन जाती है। तो विच मीन्स के जब जिधर भी सरफेस के ऊपर दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वहाँ पे क्रस्ट क्रिएट हो रही है, जहाँ पे वो टकरा रही है वहाँ पे क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रही है। तो यूं ज़मीन आप यूं समझ लें कि अपनी सरफेस बदलती है हर कुछ मिलियन सालों के बाद। ये प्रोसेस बहुत स्लो है, यानी नई क्रस्ट बनती है और वो नई क्रस्ट फिर मूव होते होते किसी और जगह पे वो सबडक्ट हो जाती है, दोबारा से वापस मेंटल में चली जाती है, और मेंटल का कुछ हिस्सा नया ऊपर आके नई क्रस्ट बना देता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। अब ये पूरा प्रोसेस अगर आपको देखा जाए कि इसका पावर स्टेशन क्या है, ये जो चल रहा है निज़ाम, ये इसकी एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो वो कोर से आ रही है, और कोर अभी भी उतनी गर्म है जितनी सरफेस ऑफ सन। तो इसका मतलब है कि इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड कि 4 बिलियन ईयर अभी फर्दर ये जो आपका कोर है ये एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है इस प्रोसेस को। सो इट विल कंटिन्यू लाइक दिस, और ये एक स्टडी प्रोसेस है, विच मीन्स के वी डोंट हैव एनी एविडेंस के अर्थक्वेक्स फ्यूचर में ज़्यादा होते जा रहे हैं। जो फिनोमेना है वो बड़ा स्टडी फिनोमेना है। आपको बज़ाहिर अगर लगे भी कि ऐसा कुछ सालों से अर्थक्वेक ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ रिकॉर्ड ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। बट अगर आप हिस्टोरिकली किसी भी एक
टाइम स्पैन को उठाएं, लेट्स से 500 साल, तो कोई से 500 साल भी उठा लें पिछले 10,000, 15,000, कई मिलियन साल में, तो आपको वो एक कांस्टेंट नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स ही मिलेगा। अब जो क्वेश्चन था आपका वो हैजर्ड की जोनिंग से मुतालिक था, और उसका ताल्लुक उस बात से है जो आज हम स्टडी करेंगे, और वो है साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट या साइज्मिक हैजर्ड एनालिसिस। ये तो सारी कहानी जो मैंने पहले 3-4 सेशंस में आपको भेजी है, अपलोड की है, वो तो पास्ट अर्थक्वेक्स के इंफॉर्मेशन से मुतालिक है। बट साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस कि जिसमें हम पास्ट हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करके फ्यूचर की फोरकास्ट करते हैं। प्रिडिक्शन का वर्ड मैं यूज़ नहीं करूंगा बिकॉज प्रिडिक्शन नहीं करते, फोरकास्ट करते हैं। सो प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स में ये गेस करने की या एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से एरियाज हैं पूरी सरफेस ऑफ अर्थ पे जहां पर फ्यूचर में अर्थक्वेक आने का चांस ज़्यादा है, और वो कितना चांस है, कितना हाई अर्थक्वेक आ सकता है। ये जो जोनिंग आपने बताई है ये उस एस्टिमेशन की बेस पे की जाती है, यानी हैजर्ड असेसमेंट उसके पीछे होती है। यूँ समझ लें कि वो जोनिंग जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो इस हैजर्ड असेसमेंट का फाइनल आउटकम है, कि आम इंजीनियर को, आम पॉलिसी मेकर को अगर बताना हो कि ज़ल्ज़ला ज़्यादा है, इस जगह पे आ सकता है या कम आ सकता है, तो बस जोन नंबर बता दिया जाए। जोन नंबर से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये हाई रिस्क एरिया है या हाई हैजर्ड एरिया है कि लो हैजर्ड एरिया है। सो हम फोरकास्ट करते हैं, और वो फोरकास्ट पुराने डेटा की बेस पे होता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्डेड अर्थक्वेक्स की बेस पे होता है। फ्यूचर में वही प्रोजेक्ट कर देते हैं, वही ट्रेंड जो पास्ट में ऑब्जर्व किया गया होता है। ये है साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट की मेन, यूँ समझ लें कि वन लाइनर, कि हम सारे के सारी साइज्मिक सोर्सेज को, पास्ट डेटा को देखते हुए फ्यूचर की फोरकास्ट करते हैं। वो फोरकास्ट प्रोबेबिलिस्टिक डेफिनेशन की शक्ल में होती है, यानी जैसे वेदर की फोरकास्ट होती है ना, उसमें ये नहीं होता कि बताया जाता कि बारिश होगी या नहीं होगी, परसेंटेज बता दी जाती है। सो अगर परसेंटेज हाई होगी उसकी, तो वो कॉन्फिडेंस हम ज़्यादा रखेंगे। सो आज हम उसी बारे में अगर डिस्कस करेंगे, मे बी टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा हैजर्ड असेसमेंट की प्रोसेस को भी देखेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप पूरी डिटेल में भी ना समझ सकें, बिकॉज वो तो एक और प्रोसेस से वो गुजर के हम करते हैं, बट आपको एक आइडिया दे दूंगा कि कैसे हम एस्टिमेट लगाते हैं फ्यूचर के अर्थक्वेक हैजर्ड का। जी सैयद समद। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर अर्थक्वेक के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ये फॉल्ट लाइंस का सर, तो ये जी फॉल्ट जी लाइंस जो है ये भी इन्हीं बाउंड्रीज की वजह से हैं या इसके अंदर कोई और कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता जी हाँ, असल में फॉल्ट लाइंस एंड बाउंड्रीज के एडिशनल कुछ क्रैक्स होते हैं अर्थ की क्रस्ट के अंदर, जो इस बाउंड्री के साथ साथ ही जो है वो लाई कर रहे होते हैं, और उनकी रीज़न उनमें भी मूवमेंट होती है, बिकॉज जो अंडरनीथ, यूँ समझ लें कि पूरी की पूरी प्लेट जब मूव करेगी तो वो जो छोटे छोटे क्रैक्स उस प्लेट के अंदर हैं उनमें भी मूवमेंट इंड्यूस होगी, और अगर उनमें भी उनकी रिलेटिव मूवमेंट में अगर फ्रिक्शन की वजह से वो दो प्लेट या दो पीसेस स्टक हो जाते हैं तो भी उससे अर्थक्वेक आएगा। सो फिनोमेना सेम है, लेकिन मेन प्लेट बाउंड्रीज के अलावा फॉल्ट्स भी होते हैं, और वो फॉल्ट्स इन मेन प्लेट बाउंड्रीज के साथ साथ ही, यानी आप इमेजिन करें ना कि एक ब्रिटल सरफेस के अंदर अगर एक क्रैक होगा तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो एक कॉन्टिन्यूस क्रैक होगा, उसके साथ कई और छोटे छोटे क्रैक्स भी होंगे। सो अगर आप पाकिस्तान का टेक्टोनिक मैप देखें, टेक्टोनिक मैप उसको कहते हैं जिसमें टेक्टोनिक फीचर्स दिखाए होते हैं। सो ऑल्दो हमें पता है कि एक मेन प्लेट बाउंड्री हमारे बिल्कुल सेंटर में से यूं गुजर रही है, लेकिन इसके साथ साथ इसके पैरेलल में बहुत से छोटे छोटे फॉल्ट्स हैं जो इसके विसिनिटी में हैं, ठीक है, और उनमें भी यही एग्जैक्टली सेम फिनोमेना होता है। वो सारे फॉल्ट्स भी कोई मॉडरेट टू हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो सबसे पहली रियलाइजेशन ही अर्ली, यूँ समझ लें 19th सेंचुरी में जो साइज्मोलॉजी का स्टार्ट पॉइंट बनी, वो ये थी कि ये जो टॉप पर हमें क्रैक्स नज़र आते हैं सरफेस पे,
ये अर्थक्वेक की रिजल्ट नहीं है, बल्कि यही उसकी कॉज है। सो यहाँ से साइज्मोलॉजी स्टार्ट हुई है। मैं आपको आई थिंक पाकिस्तान का टेक्टोनिक मैप दिखाता हूँ, मे बी वो आज जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर वो कई दफ़ा आएगा। सो उसमें यही है कि अलोंग द मेन प्लेट बाउंड्री आपके साथ छोटे छोटे कई और क्रैक्स भी हैं। कुछ तो इनएक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, बट कुछ उनमें बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि अगर एक बड़ा सा क्रैक सरफेस में यहाँ पे है, और यहाँ पर बाय द वे चमन फॉल्ट है, और फिर यहाँ पर डाउन यहाँ पे करके और नाल फॉल्ट है बलूचिस्तान में जो बड़ा एक्टिव है। सो लेट्स से ये ऊपर वाला फॉल्ट देखते हैं जो चमन फॉल्ट है। अगर मेन प्लेट बाउंड्रीज यूं मूव हो रही हैं, आपस में कन्वर्ज हो रही हैं, मूव कर रही हैं रिलेटिवली, तो वही मूवमेंट इन फॉल्ट्स में भी है। और अगर इन फॉल्ट्स के दोनों तरफ की जो लैंड है वो अलोंग द डेप्थ मूवमेंट में स्टक हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन, और फिर किसी दिन वो ओवरकम हो जाती है फ्रिक्शन और सडनली फॉल्ट स्लिप कर जाता है, और वो स्लिप 5-8 मीटर्स इस तरह होता है, यानी जो ओवरऑल लैंड है वो इतने चंद मीटर्स स्लिप करती है सडनली, और उस स्लिप से फिर अर्थक्वेक डेवलप होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अर्थक्वेक जो है वो सिर्फ मेन प्लेट बाउंड्री के इर्द गिर्द कंसंट्रेटेड होते हैं, बल्कि कुछ उससे दूर भी हो सकते हैं। और उससे दूर होने की वजह एक तो ये फॉल्ट्स होगा कि फॉल्ट्स हो सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जो यूँ समझ लें कि एक प्लेट के अंदर क्रैक होते हैं। और दूसरी रीज़न एक और भी हो सकती है, अभी जैसे मैंने आपको सबडक्शन का फिनोमेना बताया है कि एक प्लेट और दूसरी प्लेट आपस में बिल्कुल कन्वर्ज कर रही हैं, हेड ऑन कोलिजन है उनका, वीकर प्लेट जो है वो नीचे सबडक्ट होना शुरू हो जाती है। अब ड्यूरिंग दैट सबडक्शन ये अब एक ऑब्वियसली एक रफ प्रोसेस है स्लिप का। इसमें किसी भी स्टेज के ऊपर दोनों प्लेट्स में फ्रिक्शन की वजह से वो मूवमेंट रुक सकती है, या वो फ्रिक्शन की वजह से स्टक हो सकती हैं। वो स्टक हो सकती हैं कहीं बहुत डीप जाके, मे बी 200-300 किलोमीटर डीप में जाके वो मूवमेंट वहाँ रुक गई है, स्टक हो गई है ड्यू टू फ्रिक्शन, और पीछे से एनर्जी मुसलसल है लेकिन प्लेट आगे मूव नहीं हो सक रही बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से वो नीचे कहीं डीप जाके स्टक हो गया। अब वो एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी 100 साल, 200 साल में भी 500 साल, और फिर सडनली एक दिन वो रिलीज हो जाएगा, वो मूवमेंट वहाँ पे सडनली रप्चर होगा, और कुछ मीटर्स की सडन रप्चर हो जाएगा, स्लिप हो जाएगी, और वो फिर हमें एज एन अर्थक्वेक फील होगा। वो अर्थक्वेक जब सरफेस पे पहुंचेगा तो सरफेस पे सबसे पहले तो जाहिर है कि वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा जो बिल्कुल उससे ऊपर सरफेस पे पॉइंट है जहाँ से स्टक हुआ था। इस पॉइंट को फोकस कहते हैं जहाँ से रप्चर इनिशिएट होता है। उससे बिल्कुल सरफेस के ऊपर टॉप पे जो पॉइंट होता है उसको एपिसेंटर कहते हैं। सो एपिसेंटर पे सबसे पहले वो डिस्टर्बेंस पहुंचेगी। अब हमें तो सरफेस पे ये लगेगा कि यार ये सिटी जो इस सरफेस पे इस जगह पे है, ये तो मेन जहाँ पर फॉल्ट लाइन है या प्लेट बाउंड्री है उससे मे बी 200 किलोमीटर दूर है, तो फिर यहाँ पे तो अर्थक्वेक नहीं होना चाहिए। बट असल में वही फिनोमेना डीप जाके वही फिनोमेना जो इस प्लेट बाउंड्री का है वही अर्थक्वेक प्रोड्यूस कर रहा है, जो हमें सरफेस पे लग रहा है कि 200 किलोमीटर दूर या 400 किलोमीटर दूर ये अर्थक्वेक आया है। तो ये जो जितने भी डॉट्स हैं ये एपिसेंटर्स हैं, ठीक है। ये उन पॉइंट्स के बिल्कुल टॉप पर लाई कर रहे हैं जहाँ पे रप्चर इनिशिएट हुआ डिफरेंट अर्थक्वेक्स के केस में। ये पिछले 100 साल का तकरीबन डेटा है। सो आप देखेंगे कश्मीर 2005 अर्थक्वेक कहीं यहाँ पे है, ऑल्दो वो प्लेट बाउंड्री से काफ़ी पीछे है, लेकिन प्लेट बाउंड्री के साथ साथ बहुत से लोकल फॉल्ट्स और क्रैक्स भी हैं जो हमारे पूरे कंट्री में फैले हुए हैं। सो बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्टोनिक एनवायरनमेंट है हमारा। यही वजह है कि हमारा हैज़र्ड लेवल टॉप के कंट्रीज, टॉप नंबर पे जिनका हैज़र्ड लेवल है उनमें आता है। फॉर एग्जांपल वेस्ट कोस्ट यूएस का, या मे बी जापान, इंडोनेशिया, इन रीजन्स के लेवल का हैज़र्ड है हमारा। सो एनी फर्दर क्वेश्चन और क्यूरी? जी अहमद आरिफ बताइए। Assalamualaikum sir, thank you for giving us your time sir.
Sir, kindly explain, sir, the last slide, sir. So can you go back to the last slide, sir? Sir, in which you are showing epicenter, sir. Okay, this one. Sir, can you explain this phenomena of very deep earthquakes that are deeper than 300 kilometers, sir? And second, my question is, sir, can you, sir, explain about the recent earthquake in Mirpur Azad, Kashmir, and what can you tell about what can you tell us about that earthquake, sir? Thank you very much. Right. As I have explained also here in this figure on top, that the focus actually may lie some 200 to 300 kilometer down also. So most of the earthquakes here in this region are concentrated in Hindu Kush region, deep earthquakes, deep or very deep, or maybe intermediate also. So you can see here that shallow earthquakes are spread along the main plate boundary due to shallow crustal faults, and deep earthquakes are due to another phenomena of subduction. So आप ये देखें कि ये प्लेट बाउंड्री से काफी डीप दूर ये एरिया लाई कर रहा है. सो विच मीन्स कि यहाँ पे ये जो डीप अर्थक्वेक्स का प्रोसेस है ये सरफेस से हमें लग रहा है कि ये 300 या 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, बट अंडरनीथ दैट एग्जैक्टली सेम चीज हो रही है. सो आपके जो डीप अर्थक्वेक्स हैं वो 200 टू 300 किलोमीटर से ओरिजिनेट हो रहे हैं. सरफेस पे हमें वो नज़र आते हैं कि इस हिंदू कुश रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि यहाँ पर ये एग्जैक्टली फिनोमेना हो रहा है. इसी तरह एक और बड़ा क्लासिकल एग्जांपल सबडक्शन जोन का सुमात्रा सबडक्शन जोन है. आई थिंक वो मेरी स्लाइड्स में ही एक्सप्लेन हुआ है. उसमें भी एग्जैक्टली सेम चीज़ हो रही है कि एक प्लेट दूसरे के नीचे सबडक्ट कर रही है, लेकिन वो सबडक्शन के दौरान जो फ्रिक्शन की वजह से दोनों प्लेट सब स्टक हो जाती हैं. ज़्यादा चांस तो ये है कि वो सरफेस के करीब ही स्टक हो जाए. तो काफ़ी अर्थक्वेक तो शैलो ही होते हैं, लेकिन कुछ एरियाज में ऐसा भी होता है कि वो जो फ्रिक्शन है वो डीप जाके वो फ्रिक्शन डेवलप होती है, यानी वो जो प्लेट्स आपस में स्टक हो जाती हैं वो डीप से स्टक होती हैं, ऊपर कोई इशू नहीं होता. सो लिहाजा वहाँ से जब रप्चर होगा, इनिशिएट होगा, तो वो सरफेस पे तो हमें काफ़ी दूर नज़र आएगा और वो असल में डीप होगा. सो यही वजह है कि इस एरिया में ऑल्दो ये प्लेट बाउंड्री से दूर है बट डीप अर्थक्वेक्स कॉन्सेंट्रेटेड है. कुछ और जगहों पे भी हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये हैं, बट ज़्यादातर यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है बिकॉज ये नॉर्थ कोलियन बाउंड्री है. यहाँ पर प्लेट मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, यानी ये नॉर्थ की तरफ जा रही है इंडियन प्लेट और आगे डायरेक्टली हेड ऑन कोलियन है. साउथ में करके स्ट्राइक स्लिप है, ये दोनों प्लेट स्लाइड पास्ट कर रही हैं आपस में, यानी साउथ में इशू जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. प्लेट मूवमेंट इस तरह है कि नॉर्थ में डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन है, लेकिन साउथ में वो स्ट्राइक स्लिप में कन्वर्ट हो जाता है, या जिसको ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है. सो ये ऐसे ही है जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज लाइक इट इज जस्ट शबिंग इनटू द यूरेशियन प्लेट. जैसे कार क्रैश होता है, सो ऑलरेडी जो कार का अगला हिस्सा है वो स्लोली जो है वो उसके साथ प्रेस हो रहा है, जो भी आगे दूसरी प्लेट है उसके साथ. सो जो फोर फ्रंट पे लोग हैं वो ज़्यादा रिस्क में हैं, जो आगे बैठे हुए हैं, ठीक है. और जो एरियाज पीछे हैं, मसलन साउथ इंडिया, इसी तरह साउथ पाकिस्तान भी, मोस्टली साउथ पंजाब और सिंध के एरियाज में कोई ख़ास अर्थक्वेक का हैज़र्ड नहीं है. लेकिन बलूचिस्तान में, अपर बलूचिस्तान और केपी के और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के एरियाज़ में हैज़र्ड बहुत हाई है. सो ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, ये फिनोमिना है जो इसके हैज़र्ड को बढ़ाता है. दूसरा क्वेश्चन आपने किया जो रीसेंट मीरपुर अर्थक्वेक है, इस पे मैंने एक ऑलरेडी पार्ट 4 आई थिंक जो है मेरी प्ले लिस्ट का इस हवाले से, वो इस अर्थक्वेक के बारे में ही है. 24 सितंबर का जो इवेंट था, आई थिंक मैग्नीट्यूड आई थिंक 5.2 से 5.6 था, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा स्केल यूज़ कर रहे हैं. बट अर्थक्वेक का जो डैमेज था वो इस अर्थक्वेक से जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे ज़्यादा था. आमतौर पे ये डैमेज मैग्नीट्यूड 6+ में एक्सपेक्ट किया जाता है,
जो इसमें एक्सपीरियंस हुआ। सो उस पार्ट 4 में ज़रा देखिएगा कि मैंने कुछ फिगर्स से भी दिखाया हुआ है कि क्या डैमेज हुआ है। आई थिंक इट अभी तक भी नोन नहीं है हमारे, असल में जितने भी ये फॉल्ट्स हैं दे आर नॉट वेल कैटेगराइज्ड। अभी भी हमें पॉसिबल है कि अर्थक्वेक जब आ जाए तो उसके बाद हमें पता चले कि यहाँ पे भी कोई फॉल्ट एग्जिस्ट करता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फॉल्ट नेम this one this fault actually slipped in this case, but I think अभी भी क्लियर नहीं है कि एक्चुअली ये किस फॉल्ट से जनरेट हुआ। शैलो अर्थक्वेक था, आई थिंक 10 किलोमीटर या इस तरह कुछ उसकी डेप्थ थी। इस पार्ट 4 में ज़रा देखिएगा डिटेल से मैंने कुछ बताया। मेजर जो रीज़न आइडेंटिफाई हो सकी है कि इसमें डैमेज क्यों ज़्यादा हुआ कंपेयर टू व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच एन अर्थक्वेक, वो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। आमतौर पे अर्थक्वेक्स के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल शेकिंग होती है, वो ज़्यादा डैमेजिंग होती है कंपेयर टू वर्टिकल अप डाउन वाइब्रेशंस, बिकॉज जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं वो ऑलरेडी अपने सेल्फ वेट को रेजिस्ट करने के लिए और उसके सेल्फ वेट से कई गुना ज़्यादा लोड को रेजिस्ट करने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। सो वर्टिकल लोड मोस्टली इज़ नॉट एन इशू, हॉरिजॉन्टल शेकिंग और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज एन इशू। लेकिन इस केस में वर्टिकल कंपोनेंट वाज आल्सो सिग्निफिकेंट। वो मैंने टाइम हिस्ट्रीज इसमें शो की हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की शेकिंग की भी और वर्टिकल की भी। सो आई रेफर यू टू दिस पार्ट 4 ऑफ दिस प्लेलिस्ट in which I discussed this specific earthquake, I think. Okay, sir. Thank you very much. Thank you. So any further questions or queries? So then, okay, then I can, okay, one more. Please. Assalamualaikum, sir. Sir, I wanted to know how are suture zones defined and how do the fault lines or the plate movements they affect them? उनके ऊपर ज़्यादा devastating effect होता है और how the movement affects them? Okay, how movement of earth affects the structures? Sir, suture zones, just I was reading about this Shayok suture zone, which is in the northern region of Pakistan, and what I got to know was that these are the zones which are like in between two fault lines, if I'm not wrong. So I want to know like if it's a gap or how is it defined? Okay, I am not confirmed about what exactly area you are referring to, but earthquake hazards. जी. Sir, it's the suture zone in the northern area of Pakistan. It was called Shayok, Shyok, and it was related to all these what do you call these fault lines and the seismic movement. Right. I think what you are referring to is the surface rupture which is manifesting at certain locations and then हम फिर उनको नाम दे देते हैं different. So earthquakes का एक तो इफेक्ट ये है जो हमें ग्राउंड शेकिंग की शक्ल में फील होता है। कुछ पॉइंट्स के ऊपर अर्थक्वेक की जो स्लिप है वो सरफेस पे भी मैनिफेस्ट हो जाती है और ये बहुत रेयर केसेस में होता है, लेस देन 10% ऑफ द केसेस में। यानी आम तौर पे अगर आप देखें कि लेट्स से अर्थ की जो टोटल क्रस्ट है वो 80 किलोमीटर्स है। लेट मी एक्चुअली ओके, ये लेट्स से वो एक टेक्टोनिक प्लेट है, इट इज़ जस्ट इन अ कोलिजन विद अनदर वन, और ये जो डेप्थ है ये 80 किलोमीटर्स है लेट्स से। अब जो हम जिसको अर्थ आमतौर पे कंसिडर कर रहे होते हैं वो लूज सॉइल डिपॉजिट्स होते हैं जो इसके टॉप के ऊपर होते हैं, बहुत ही थिन लेयर होती है
और ये जो प्लेट बाउंड्री है ये हमें सरफेस से विजिबल नहीं होती। बहुत कम ऐसी फॉल्ट्स हैं या प्लेट बाउंड्रीज हैं जो सरफेस पे भी अपना कोई ट्रेस शो करती हैं। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द वेरी फेमस स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट इज सैन एंड्रियास फॉल्ट इन कैलिफोर्निया, जहाँ पे वो सरफेस पे भी उसकी फॉर्मेशन नज़र आती है कि यार यहाँ पे एक क्रैक है सरफेस क्रस्ट में। आमतौर पे लूज सॉइल डिपॉजिट्स की वजह से और या टॉप लोकल सॉइल जिसको कहते हैं उसकी वजह से ये क्रैक हमें सरफेस पे विजिबल नहीं होता। और स्लिप के केस में भी 90% ऑफ द अर्थक्वेक्स में ये क्रैक सरफेस पे विजिबल नहीं होता। सिर्फ 10% केसेस में ये होता है कि वो जो स्लिप या रप्चर हुआ है उसकी डेफॉर्मेशन या उसका इफेक्ट सरफेस के ऊपर भी नजर आए और वो सरफेस भी डिस्टॉर्ट हुई हुई या क्रैक हुई हुई, या अगर वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स जा रही हैं तो वो ओपन हुई हुई नजर आएगी आपको। लेस देन 10% ऑफ द अर्थक्वेक्स के केस में ये होता है। सो सरफेस रप्चर के अगेंस्ट किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम अर्थक्वेक के अगेंस्ट स्ट्रक्चर्स का डिजाइन की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं ग्राउंड शेकिंग की बेसिकली या वाइब्रेशंस की। अगर ये केस हमारे स्ट्रक्चर लेट से इस टॉप के ऊपर एक सरफेस रेस्ट कर रहा है और ये प्लेट मूव कर जाती है रिलेटिव टू ईच अदर और वो सरफेस पे भी क्रैक आ जाते हैं या वो नज़र आ जाता है डेफॉर्मेशन, उसके अगेंस्ट स्ट्रक्चर को डिज़ाइन नहीं कर सकते। सो द ओनली solution to reduce surface rupture loss is to just not build on these fault lines. हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च के ज़रिए और स्टडीज़ के ज़रिए आइडेंटिफाई करें कि कहाँ कहाँ एक्टिव फॉल्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, उनको मार्क करें, क्लासीफाई करें, कैरेक्टराइज करें और उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त ना दें। ये वाहिद हल है इसका। हाँ, ग्राउंड मोशन के अगेंस्ट डिज़ाइन हो सकता है। अगर आपकी बेस शेक कर रही है स्ट्रक्चर की, आप स्ट्रक्चर को सेफ बनाने के लिए कुछ एक्शंस कर सकते हैं, लेकिन इस किस्म के फिनोमेना के लिए आई थिंक जो आप जिक्र कर रही हैं वो सरफेस रप्चर से रिलेटेड एक फिनोमेना है, उसके अगेंस्ट स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन नहीं कर सकते क्योंकि रिलेटिव मूवमेंट इतनी ज़्यादा है कि आप का स्ट्रक्चर उसको अकोमोडेट ही नहीं कर सकेगा। जो पार्ट 3 है आई थिंक उसमें मैंने पार्ट 5 इनफैक्ट आई थिंक जिसमें साइज्मिक हैज़र्ड असेसमेंट को मैंने या साइज्मिक हैज़र्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाया, उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दी है जिसमें 1999 चीची अर्थक्वेक जो ताइवान में आया था, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट डैम शीकांग डैम उसको कहते हैं, वो फेल हो गया था और वो डैम के फेलियर की वजह सरफेस रप्चर थी बिकॉज वो डैम एक फॉल्ट लाइन पे बना हुआ था विच वॉज नॉट नोन प्रीवियसली, और जब रिलेटिव मूवमेंट हुई और वो सरफेस पे भी नज़र आई तो वो डैम जो है वो फेल हो गया। जी जी सर, फॉल्ट लाइन की जो विड्थ होती है वो मिनिमम या मैक्सिमम एवरेज वो कितनी होती है, एंड हाउ डू वी टेक नो दैट वी आर एग्जैक्टली ऑन टॉप ऑफ इट? और जी टेक्टोनिक फीचर्स को एक मैप के ज़रिए शो किया जाता है, जैसे ये एक मैप आपके सामने अभी खुला हुआ है, ये टेक्टोनिक मैप है साउथ ईस्ट एशिया का। सो जितने भी फॉल्ट्स और प्लेट बाउंड्रीज और उनकी डायरेक्शंस वगैरह मूवमेंट वगैरह वो एक फॉल्ट एक टेक्टोनिक मैप के ऊपर शो किया जाता है और ये जाहिर है कि बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, जो स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च या नॉलेज है उसके मुताबिक ये मैप ड्रॉ होना चाहिए। सो आप देख सकती हैं फॉर एग्जांपल ये एक फॉल्ट है, ये एक फॉल्ट है जो बहुत लंबा है। आप ये देखें कि कई 100 किलोमीटर्स तक इसकी एक्सटेंट है। डेप्थ इनकी जाहिर है कि वेरी करेगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ इनकी कितनी हो सकती है, इक्वल टू दी अर्थ क्रस्ट थिकनेस, ठीक है। लेकिन इनका जो एक्सटेंट है, लेंथ है, वो कई 100 किलोमीटर्स भी हो सकता है। सो एक फॉल्ट फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान के केस में चमन फॉल्ट है, वो बहुत उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, इट कैन बी एज मच एज 1200 किलोमीटर्स। सो जैसे ये एक फॉल्ट लाइन है जो कि एक समझें कि KPK से स्टार्ट हुआ और लोअर बलूचिस्तान तक वो जा रहा है। सो फॉल्ट लेंथ तो 1500 किलोमीटर तक भी हो सकती है।
डेप्थ जो है वो मैक्सिमम इक्वल टू दी डेप्थ ऑफ द क्रस्ट हो सकती है विच इज़ 80 किलोमीटर। और विड्थ से मुराद अगर आपकी इनका आपस में रिलेटिव डिस्टेंस है वो तो ज़ाहिर है ज़ीरो होगा ना, बिकॉज ये एक क्रैक है जो बस रन कर रहा है इन दो पीसीज ऑफ लैंड्स के दरमियान। ये क्रैक एक बड़ी जैग्ड किस्म की बाउंड्री होगा, रेगुलर बाउंड्री नहीं होगा। सो इट विल बी लाइक दिस कि एक इरेगुलर सी बाउंड्री है, डेप्थ में यूं जा रही है, और दूसरी तरफ ये एक प्लेट है जो इस डायरेक्शन को मूव कर रही है, दूसरी इस तरह मूव कर रही है। सो अलोंग द डेप्थ भी ये जैग्ड होगा क्रैक, और अलोंग दी लेंथ भी ये, यानी टॉप से अगर आप देखें तो ये भी उतना स्मूथ नहीं होगा जितना, बाय द वे जैसे अभी ये हमें टॉप से स्मूथ लाइन नज़र आ रही है, लेकिन जब इसको जूम इन करेंगे तो इट विल बी अ वेरी जैग्ड लाइन। सो नोन फॉल्ट्स को कैरेक्टराइज किया जाता है हर कंट्री के जो भी फॉल्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और फिर कंट्री का बिल्डिंग कोड ये इंश्योर करता है कि कोई भी बिल्डिंग या इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर उस फॉल्ट लाइन के ऊपर, जो कि कोड ही में डिफाइंड होता है कि ये फॉल्ट्स हैं, उसके ऊपर लाई ना करे, बल्कि सिर्फ उसके ऊपर ही नहीं बल्कि उसके 20 किलोमीटर्स आई थिंक दोनों तरफ आप कोई मेजर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। सो आई होप के ये क्लियर हो गया होगा। और कोई क्वेश्चन? जी जी। Assalamu alaikum, sir. Sir, there's this value that we associate with earthquakes, PGA and PGV value. Could you finally tell the difference between them? देखिए, PGA is peak ground acceleration. Maximum value of that acceleration which is expected during future earthquake. So किसी भी earthquake को अभी इसमें भी अगर आप वो प्लेलिस्ट में देखें तो आई थिंक थर्ड जो पार्ट है वो earthquake की साइज से रिलेटेड है, साइज ऑफ earthquake। तो इसमें मैंने ये डिस्कस किया है कि earthquake को क्वांटिफाई करने की, उसके साइज को देखने की हिस्ट्री क्या है। सो शुरू में इंटेंसिटी मैप्स बनाए गए। इंटेंसिटी मैप्स में ये किया जाता था कि, या इंटेंसिटी स्केल्स में, कि 1 से 10 तक या 1 से 5 तक आप बस डिस्क्रिप्टिव जो भी डैमेज आपको लगता है कि अगर 1 से 5 का स्केल दिया जाए तो आप इस earthquake को क्या रैंक करेंगे। सो बेस्ड ऑन पीपल्स एक्सपीरियंस ऑफ द एक्चुअल डैमेज, हाउ दे फेल्ट इट, किसी earthquake को यूं क्लासीफाई कर दिया जाता था 1 से 10 तक फॉर एग्जांपल। और कुछ ऐसे भी स्केल्स हैं जो आज तक यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें मैंने एक्सप्लेन किया MMI स्केल, मॉडिफाइड मर्काली इंटेंसिटी स्केल, जो 1 से 12 तक है। 1 का मतलब लोएस्ट और 12 का मतलब कि एवरीथिंग इज गॉन। तो शुरू में हम इंटेंसिटी स्केल से स्टार्ट हुए earthquake को क्वांटिफाई करना। फिर ये आइडिया आया कि यार ये तो रिलेटिव है, कोई किसी earthquake को 6 कहेगा, कोई 7 कहेगा। डिस्क्रिप्शंस ऑफ डैमेज आर नॉट इनफ जो यूनिवर्सली कोई स्केल यूज हो सके। और दूसरा, earthquake की जो इंटेंसिटी है वो तो उसके एपिसेंटर से या रप्चर की जो फॉल्ट लाइन है उसकी लोकेशन कितनी है, आप कितना दूर हैं, कितना पास हैं उसके, उस पर डिपेंड करती है। तो साइज तो होना चाहिए कि जो एब्सोलूट हो, जो earthquake के अपने स्लिप पर डिपेंड करे और कितनी एनर्जी रिलीज हुई है उस पर डिपेंड करे। तो फिर इस रियलाइजेशन से मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट आया कि यार एक यूनिवर्सल नंबर होना चाहिए जिस पे सारे एग्री करें, और हर earthquake को एक मैग्नीट्यूड का नंबर दे दिया जाए जो कि उसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज को क्वांटिफाई करे। ये नहीं कि जो करीब है वो उसको ज़्यादा स्केल दे दे, जो दूर है वो उसको कम स्केल दे दे। तो मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया गया, फिर मैग्नीट्यूड की डिफरेंट स्केल्स बन गए, उनकी टाइप्स आ गई। वो ये साइज ऑफ earthquake में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अब मैग्नीट्यूड से भी और फिर मैग्नीट्यूड के डेफिनेशन में भी कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। अब बाय द वे आम तौर पे जो रफ रेंज है वो ये है कि मैग्नीट्यूड 5 से ज़्यादा जो earthquake है वो डिस्ट्रक्टिव earthquake की कैटेगरी में आना शुरू हो जाते हैं। और अभी तक सबसे ज़्यादा जो बड़े से बड़ा earthquake मेजर किया गया है वो मैग्नीट्यूड 9.5 का चिली earthquake है 1963 में या 65 में, ये चिली में रिकॉर्ड किया गया मैग्नीट्यूड 9.5। और इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो 1 यूनिट इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड है ये 10 टाइम्स इंक्रीज इन दी शेकिंग इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है।
तो मैग्नीट्यूड 5 जो है वो मैग्नीट्यूड 6 से 10 टाइम्स छोटा है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड 7 पर जाएंगे तो वो समझ लें कि मैग्नीट्यूड 7 मैग्नीट्यूड 5 से 100 टाइम्स शेकिंग ज़्यादा रखता है। तो ये एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, ये लीनियर इंक्रीज नहीं है। इसको डिफाइन इस तरह किया गया। लेकिन जब स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात आएगी या एक्चुअल जो आपको शेकिंग फील हो रही है स्ट्रक्चर की बेस पे या आपके यूँ समझ लें कि जहाँ पर आप खड़े हैं जो आपकी साइट है, तो उसमें फिर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो ज़्यादा मीनिंगफुल हैं, वो इस्तेमाल होते हैं अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को अकाउंट कर क्वांटिफाई करने के लिए। तो उनमें से ये वर्ड्स हैं जो अभी या टर्मिनोलॉजी है, पीजीए, पीजीवी, पीजीडी भी हो सकता है, पीक ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट। और ये इस तरह डिफाइन होते हैं कि अगर लेट से आप की एक ये पर्टिकुलर साइट है और इस पर एक अर्थक्वेक आया और वो रिकॉर्ड हो गया। आजकल हमारे पास ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन एक्सेलरोमीटर्स हैं जो डायरेक्टली ग्राउंड की हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली। सो वो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का हमारे पास यूँ सिग्नल आ जाएगा, एक ग्राफ आ जाएगा। एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे ग्राउंड एक्सेलरेशन है। तो इस ग्राउंड एक्सेलरेशन का जो पीक नंबर होगा, पीक वैल्यू चाहे पॉजिटिव साइड पे चाहे नेगेटिव साइड पे, वो पीक नंबर कहलाएगा पीजीए, पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन। ये वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जो इस अर्थक्वेक ने इस अर्थक्वेक ने इस ग्राउंड को जो शेक किया है या पीक एक्सेलरेशन दी है, वो ये पीजीए नंबर होगा। अगर मैं इस एक्सेलरेशन को वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दूं, बिकॉज एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो एक ग्राफ हमारे पास आ जाएगा जो ग्राउंड की वेलोसिटी बताएगा। तो लेट्स से ग्राउंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आ जाएगा। इस ग्राफ का जो पीक नंबर होगा वो पीक ग्राउंड वेलोसिटी होगा। और अगर ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट में एक दफ़ा मज़ीद इंटीग्रेट कर लें, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट बना लें, तो उसका पीक नंबर जो होगा वो पीक ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट होगा। सो ये नंबर आपको बताएगा लेट्स से 0.15 मीटर, ये वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो इस अर्थक्वेक में, किसी भी अर्थक्वेक में स्ट्रक्चर को या ज़मीन को असल में वो एक्सपीरियंस होगी। ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जो ज़मीन को एक्सपीरियंस होगी ड्यूरिंग दैट अर्थक्वेक। सो अब ये तो किसी एक रिकॉर्डेड अर्थक्वेक के लिए एग्जैक्टली मालूम किए जा सकते हैं ये नंबर, क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास होती हैं, हम नंबर निकाल लेते हैं वहाँ से। फ्यूचर अर्थक्वेक का क्या किया जाए जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। सो उस केस में भी बजाय कि ये पूरी हिस्ट्री ज़ाहिर है, फ्यूचर अर्थक्वेक की तो शेकिंग आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, तो आप ये करते हैं कि आप एस्टीमेट लगाते हैं कि फ्यूचर अर्थक्वेक जो भी होगा, जैसा भी होगा, जिस भी फॉल्ट से आएगा, जिस भी मैग्नीट्यूड का होगा, हमें वो पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन अगर दे दी जाए जो फ्यूचर अर्थक्वेक ने प्रोड्यूस करनी है, एस्टीमेट दे दिया जाए उसका, तो ये इंफॉर्मेशन फिर हम नए बिल्डिंग्स की डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर अर्थक्वेक की पीक ग्राउंड वेलोसिटी, पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन, पीक ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट। अगर देखा जाए तो साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट इन्हीं नंबर्स को एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर कैलकुलेट करने का या फोरकास्ट करने का नाम है कि पास्ट अर्थक्वेक डेटा अवेलेबल है, पास्ट अर्थक्वेक्स की, हज़ारों अर्थक्वेक्स की पीजीए, पीजीवी, पीजीडी अवेलेबल है, और अब इसको यूज़ करके हमने फ्यूचर अर्थक्वेक का एस्टीमेट लगाना है। वो एस्टीमेट या हैजर्ड असेसमेंट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, डिफरेंट एरियाज़ का, गवर्नमेंट्स करती हैं, ताकि उस कंट्री के बिल्डिंग कोड में ये नंबर्स दिए जा सकें पूरे कंट्री की साइट्स के लिए। तो कोई भी स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर या कोई भी और स्टेक होल्डर, पॉलिसी मेकर, उसको हैजर्ड असेसमेंट ना करनी पड़े फ्यूचर के प्रिडिक्शन के लिए या फोरकास्ट के लिए, वो डायरेक्टली हैजर्ड मैप से या हैजर्ड असेसमेंट के बाकी जो रिजल्ट्स होते हैं उनसे ये नंबर्स पिक कर लेगा। सो आपको हैजर्ड मैप्स जब मिलेंगे किसी भी एरिया के, यानी जो कि साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट का अल्टीमेट आउटपुट है, वो हैजर्ड मैप इनमें से किसी एक पैरामीटर को शो कर रहा होगा फॉर फ्यूचर अर्थक्वेक, पास्ट अर्थक्वेक नहीं। फ्यूचर अर्थक्वेक के एस्टिमेटेड नंबर्स को वो कंटूर से या कलर से दिखा रहा होगा,
और हर साइट के ऊपर, हर नुक्ते के ऊपर उस मैप में वो वैल्यू आपको मिल जाएगी जो आपने आगे इस्तेमाल करनी है किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए या कुछ और भी करने के लिए। सो मैं आपको आज कई हैज़र्ड मैप्स दिखाता हूँ, पाकिस्तान के भी और भी कंट्रीज़ के, जो साइज्मिक हैज़र्ड असेसमेंट को परफॉर्म करके इन PGA, PGV, PGD वगैरह की शक्ल में डेवलप किए गए हैं और वो फिर उन कंट्रीज़ के बिल्डिंग कोड्स वगैरह में इंक्लूड किए गए हैं। सो कोई और क्वेश्चन या क्यूरी अबाउट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थक्वेक्स या अर्थक्वेक हैज़र्ड? Sir, how do tidal waves affect earthquake? थोड़ा सा ये रिसर्च में है आजकल। आई थिंक के कोई अभी तक हमारे पास ओवरवेलमिंग एविडेंस नहीं आ सका कि टाइडल वेव्स भी अर्थक्वेक्स को अफेक्ट करती हैं। आज असल में कुछ साइंस मैगजीन्स वगैरह या कुछ और भी रिसर्चर्स जो हैं वो दे आर ऑफ दिस ओपिनियन के वाकई अर्थ की रोटेशन या साइज या टाइडल एक्टिविटी या कोई और भी फिनोमेना ऐसे हैं जो इस साइज्मिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बट अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं आ सका कि इसका कोई साइज्मिक एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट है। साइज्मिक एक्टिविटी का फिनोमेना इतना लार्ज स्केल और इतना ग्रैंड लेवल पे है कि कोई भी यूँ समझ लें कि छोटी मोटी एक्टिविटी या चीज़ जो है वो इसको आल्टर नहीं कर सकती। सो ऑल्दो कि कुछ लोगों ने कुछ ऐसे पेपर्स पब्लिश किए हैं रिसेंटली जिसमें क्लेम किया गया है कि टाइडल वेव्स या टाइडल फिनोमेना या अर्थ की रोटेशन का फिनोमेना समहाउ साइज्मिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। बट स्टेट ऑफ द आर्ट नॉलेज यही है अभी इस एरिया में कि अर्थक्वेक्स जो हैं वो स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट हैं, ये हिस्टोरिकली रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इनमें कोई पैटर्न नहीं है, इनमें कोई ऑर्डर नहीं है। इस प्रोसेस को पॉइजोनियन प्रोसेस कहते हैं स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में, कि ऐसा प्रोसेस जिसको किसी ख़ास ड्यूरेशन में एवरेज वैल्यू तो कैलकुलेट की जा सके लेकिन एग्जैक्टली प्रिडिक्ट ना किया जा सके कि क्या कब आएगा या कब ये अकर करेगा फिनोमेना। तो ऐसे प्रोसेस को पॉइजोनियन प्रोसेस कहते हैं और अर्थ को एक पॉइजोनियन प्रोसेस है। सो हम ये तो बता सकते हैं कि 100 साल में फ्लां अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड के आने का चांस कितना है और एवरेज रेट क्या है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि उस 100 साल के अंदर ये कब आएगा। सो ऐसे प्रोसेस को इसी तरह पॉइजोनियन प्रोसेस के तौर पे ही हैज़र्ड असेसमेंट में मॉडल किया जाता है। सो अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कमेंट कर सकूँ कि टाइडल एक्टिविटी का क्या रोल होगा इस फिनोमेना में। All right, sir. Thank you. Right. So any further question or query? अगर मैं क्विकली ओवरव्यू दूं तो फर्स्ट टॉपिक तो था अर्थक्वेक की कॉजेज पे, प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी क्या है और ये फिनोमेना है क्या असल में। सेकंड जो पार्ट था वो साइज्मिक वेव्स के टाइप्स के बारे में था और इसमें आप कि इसकी समरी ये है कि दो मेन टाइप्स हैं, पी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। एक तीसरी टाइप भी है सरफेस वेव, बट वो सबसे आखिर में किसी साइट पे पहुंचती है। सबसे पहले पी वेव जो सबसे फास्टेस्ट है, उसके बाद एस वेव। एस वेव असल में ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, जो है वो लेटरली मूव करवाती है अर्थ को। और फिर इसको मेजर करने के डिफरेंट तरीके हैं। शुरू में हम ग्राउंड की डिस्प्लेसमेंट को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रिकॉर्ड करते थे, लेकिन अब हम डायरेक्टली ग्राउंड एक्सेलरेशन को रिकॉर्ड करते हैं बिकॉज एक्सेलरेशन इज मोर मीनिंगफुल
कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। उसकी रीज़न भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आई थिंक वो आप अंडरस्टैंड अभी कर सकेंगे कि अगर एक्सेलरेशन को किसी भी चीज़ की एक्सेलरेशन को आप उसके ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई कर दें तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक वो फोर्स, इनर्शियल फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फिजिकल टू m इंटू ए। तो अगर ग्राउंड की ए हमें डायरेक्टली पता है तो हम स्ट्रक्चर के मास से उसको मल्टीप्लाई करके वो फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं जो स्ट्रक्चर में डेवलप होंगी बिकॉज ऑफ दैट अर्थक्वेक या बिकॉज ऑफ दैट ग्राउंड शेकिंग। तो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए तो एक्सेलरेशन मालूम होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर अगर एक्सेलरेशन रिकॉर्ड कर ली जाए तो जैसे मैंने बताया आप उसको इंटीग्रेट कर लें। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो एक्सेलरेशन को वेलोसिटी में और फिर वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर देती हैं। सो ये कुछ क्विक सी इंट्रोडक्शन है कि कैसे अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने की हिस्ट्री है। थर्ड पार्ट में फिर मैंने मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट दिया। थर्ड पार्ट वाज अबाउट द साइज ऑफ अर्थक्वेक, जैसे बताया मैंने अभी। और फिर फोर्थ पार्ट जो है वो इस हवाले से है कि आपको डिफरेंट ऑनलाइन रिसोर्सेज मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। फॉर एग्जांपल USGS का ऑनलाइन डेटाबेस है, वो उससे आप अर्थक्वेक का या साइज्मिक डेटा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंट इंटरनेशनल डेटाबेसेस ने अपने साइज्मिक रिकॉर्डिंग स्टेशंस पूरी दुनिया में इंस्टॉल किए हुए हैं और उनका डेटा लाइव उनके वेब पेज पे आ रहा होता है। तो आप किसी भी अर्थक्वेक का डेटा जो भी उसके करीब तरीन स्टेशन बनते हैं उनको ढूंढ के उन्हीं के डेटाबेस में डाउनलोड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, वो फ्रीली अवेलेबल है। डेटा से मुराद वो पूरी रिकॉर्डिंग, ग्राउंड की शेकिंग की पूरी रिकॉर्डिंग जो 50 सेकंड, 60 सेकंड या कुछ मिनट की जो भी शेकिंग है उस अर्थक्वेक के दौरान। उसके बाद एक फाइनल वीडियो थी जिसमें मैंने हैज़र्ड असेसमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है कि अर्थक्वेक के हैज़र्ड हैं क्या क्या। ग्राउंड शेकिंग उनमें से सिर्फ एक है जो हमारे स्ट्रक्चर्स के लिए बड़ी डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन कंप्लीट लिस्ट में तो और भी बहुत कुछ है। सुनामी भी एक अर्थक्वेक का हैज़र्ड है। अगर अर्थक्वेक की वजह से डैम फेल होते हैं और फ्लड आता है तो वो भी अर्थक्वेक ट्रिगर्ड हैज़र्ड है। Earthquake can also trigger fires. It can trigger liquefaction of soil. ये एक फिनोमेना है जिसमें जब सॉइल को शेक किया जाता है तो वो अपनी बेरिंग कैपेसिटी लूज कर देती है और लिक्विड की तरह बिहेव करती है। जो वीकर सॉइल्स होती हैं वो शेकिंग के दौरान बहुत ही मज़ीद वीक हो जाती हैं, आप यूँ समझ लें। सो स्ट्रक्चर उनमें जस्ट ओवरटर्न हो जाते हैं, उनके ऊपर रेस्ट किए हुए स्ट्रक्चर्स जब सॉइल शेक होगी तो दे विल जस्ट ओवरटर्न। सॉइल ऐसे बिहेव करेगी जैसे वो लिक्विड है। लिक्विफेक्शन का फिनोमेना लूज सॉइल्स में होता है और ये भी अर्थक्वेक की वजह से होता है। लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक कैन ट्रिगर लैंडस्लाइड्स, मड स्लाइड्स, डिफरेंशियल सॉइल सेटलमेंट्स वगैरह वगैरह। सो आमतौर पे जब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से साइज्मिक हैजर्ड का वर्ड बोला जाता है तो उससे मुराद ग्राउंड शेकिंग हैजर्ड होता है। बाकी जो लिस्ट में हैजर्ड्स हैं वो भी अर्थक्वेक के हैं, उनका भी अपना हैजर्ड असेसमेंट होता है, लेकिन वो ये कि स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं जिनमें वो हैजर्ड असेसमेंट किया जा सकता है। इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर सिर्फ ग्राउंड शेकिंग की अगेंस्ट डिज़ाइन किए जा सकते हैं। सो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने डिफरेंट हैजर्ड्स की इसमें दिखाई हैं। ये वो एग्जांपल है जो मैं बता रहा था कि एक डैम था जो जिसमें जो मेन फॉल्ट लाइन है वो ऐसे अलोंग दिस कर्सर, अगर आप अभी आपको नज़र आ रहा हो, इसके अलोंग वो फॉल्ट पास कर रहा है। उसके ऊपर बिल्कुल डैम बन गया और वो फॉल्ट लाइन अभी मालूम नहीं थी। सडन मूवमेंट की वजह से एक हिस्सा डैम का पूरा ऊपर मूव कर गया। सो ओरिजिनल लेवल जो था वो डैम का जो लेफ्ट साइड पे डैम का हिस्सा थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये ओरिजिनल लेवल था। लेकिन इस अर्थक्वेक की वजह से एक हिस्सा पूरा का पूरा अर्थ का वो ऊपर मूव कर गया और ये मूवमेंट 9 मीटर्स तक थी। 9 मीटर्स। तो कोई स्ट्रक्चर भी इस 9 मीटर्स की डिफरेंशियल
जो है ना डेफॉर्मेशन को रेजिस्ट नहीं कर सकता। यानी ये ओरिजिनल लेवल था डैम का और ये पूरा हिस्सा ऊपर को मूव कर गया। तो ये जो डिफरेंशियल मूवमेंट है ये 9 मीटर्स तक की थी। सो यू कैन नॉट डिजाइन एनीथिंग टू रेजिस्ट दिस काइंड ऑफ शेकिंग, दिस काइंड ऑफ रप्चर। वाहिद हाल इसका ये है कि इसके ऊपर मालूम किया जाए कि फॉल्ट्स कहाँ कहाँ हैं और उनके ऊपर कुछ ना बनाया जाए, कोई स्ट्रक्चर ना बनाया जाए। एक ही अर्थ को किसी एक एरिया में डिफरेंट किस्म के हैजर्ड्स प्रोड्यूस कर सकता है। ये वो लिक्विफेक्शन का फिनोमेना है कि अब देखिए पूरी का पूरा स्ट्रक्चर इंटैक्ट है लेकिन जस्ट रोटेट कर गया बिकॉज जो अंडरनीथ सॉइल है वो लिक्विफाई हो गई थी। ये भी आप देखें स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज, वो उसमें कोई क्रैक नहीं आया या वो डेफॉर्मेशन नहीं हुई, बट जस्ट वो रोटेट कर गया, टिल्ट हो गया और वो फेल हो गया। सो ये सारे अर्थक्वेक के फिनोमिना हैं या हैजर्ड्स हैं। मोस्टली हम जो है वो सिर्फ ग्राउंड शेकिंग हैजर्ड को जो है वो मेनली एनालाइज करते हैं, लेकिन बाकी भी किए जा सकते हैं। सो ये एक अर्थक्वेक जो बार बार मैंने उसमें रेफर किया है 1995 कोबे अर्थक्वेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट अर्थक्वेक था बिकॉज इसके बाद बहुत सी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई जापान में साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट से मुतालिक और साइज्मिक लॉस एस्टिमेशन और रिडक्शन से मुतालिक। सो ये वो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट के ज़रिए दे सकते हैं या साइज्मिक हैजर्ड एनालिसिस के ज़रिए कि फ्यूचर अर्थक्वेक कहाँ आएंगे, कितने बड़े आ सकते हैं, कितने फ्रीक्वेंटली आ सकते हैं। सो ये सिर्फ फोरकास्टिंग हो सकती है, एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और ग्राउंड मोशंस किस किस साइट पर, किस किस लोकेशन पर, किस किस लेवल की फील होंगी, और फिर ये कि क्या हमारी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स भी उसको रेजिस्ट करने के काबिल होंगे या नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये हैजर्ड असेसमेंट से मुतालिक नहीं है, लेकिन इससे ऊपर वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो हैजर्ड असेसमेंट से मुतालिक हैं। सो चीज़ें मैं स्किप करता हूँ और फिर हम एक ब्रेक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसमें हैजर्ड असेसमेंट के प्रोसेस का मैं ओवरव्यू दूंगा। अगर आपको कुछ उसमें कुछ समझ ना भी आए तो वो आपने उसमें परेशान नहीं होना, बिकॉज मैं कोशिश तो करूँगा कि बहुत बेसिक से लेवल पे समझाऊँ, बट क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो पहले से मालूम होनी चाहिए। मैं ऑल दो ट्राई टू एक्सप्लेन, लेकिन फिर भी आप बाद में भी पूछ सकते हैं। और मकसद इस सारे का आपको सिर्फ ओवरव्यू देना है हैजर्ड असेसमेंट के प्रोसेस का। आपको एक लेक्चर में ज़ाहिर है ऐसा नहीं किया जा सकता कि आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाए। सो आपने सिर्फ इसका ओवरव्यू समझना है कि ओवरऑल प्रोसेस हो क्या रहा है, कैसे पिछला डेटा आ रहा है, किस किस प्रोसेसिंग से गुजर रहा है, और वो ही यूज़ हो रहा है फ्यूचर की फोरकास्टिंग के लिए। ये इसकी समरी है, लेकिन मैं कुछ लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल से, डिटेल में भी थोड़ा चला जाऊँगा, बट ओवरव्यू इसका यही है। सो एक जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो बिफोर हम हैजर्ड असेसमेंट को स्टार्ट करें, वो है हैजर्ड मैप्स का, जो जैसे मेरी पहले भी डिस्कशन में आया है, और फिर हैजर्ड की डेफिनेशन का। इस किस्म के ये जो मैप्स होते हैं जो कंटूर्स के ज़रिए या कलर्स के ज़रिए फ्यूचर अर्थक्वेक के को फोरकास्ट करते हैं, इनको हैजर्ड मैप्स कहते हैं। और ये एक हैजर्ड की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हैं, और वो डेफिनेशन कलर के ज़रिए वो नंबर्स आपको स्पेशली दिखाए जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये यूएस का हैजर्ड मैप है और ये साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की फाइनल आउटपुट है, ठीक है। ये यूएस का हैजर्ड असेसमेंट का रिजल्ट है। अगर पीछे जाएं, ये थाईलैंड का साइज्मिक हैजर्ड मैप है। इसमें भी जो कंटूर्स हैं वो डिफरेंट नंबर्स दिखा रहे हैं। अब ये नंबर क्या है? ये है पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन, जैसे अभी एक क्वेश्चन भी आया था कि ये एक्सेलरेशन की, ग्राउंड एक्सेलरेशन के वो मैक्सिमम नंबर्स हैं जो फ्यूचर अर्थक्वेक में एक्सपेक्टेड हैं इन जगहों पे। तो अगर ये नंबर हाई है, उस जगह पे ज़्यादा हाई अर्थक्वेक आ सकता है। मसलन
मैं एक साइट ले लेता हूँ, ये मेरी लेट से साइट है यहाँ पे, यहाँ पर मैं एक कोई भी फैसिलिटी डेवलप कर रहा हूँ, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग मैप से मेरा नंबर आ गया 0.125 और ये जो यूनिट्स हैं वो जी यूनिट्स हैं, यानी आप इसको जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें से मल्टीप्लाई कर लें तो आप एक्सेलरेशन यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मीटर और सेकंड में चलेंगे तो ये 9.8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भी जो भी नंबर आएगा इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। सो ये पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन है जो आपकी साइट के कॉरिस्पॉन्डिंग है, लेकिन इसकी डेफिनेशन प्रोबेबिलिस्टिक है, यानी ये ऐसा नहीं है कि हमेशा हमेशा तक इस साइट के ऊपर मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसी भी अर्थक्वेक से 0.125 जी आ सकती है, ऐसा नहीं है। एक डेफिनेशन रखी गई है स्टैंडर्ड, प्रोबेबिलिस्टिक डेफिनेशन है। जैसे मैंने बताया, जैसे वेदर फोरकास्ट होती है तो ये नहीं बताते कि बारिश होगी लाजमी, साथ उसका चांस बताते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी जो डेफिनेशन है पीजीए की वो प्रोबेबिलिस्टिक है, और वो क्या है, 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर एक्सपोजर पीरियड, ये जो मैंने इसको सर्कल किया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी नंबर आएगा इस मैप से पीजीए का, इस बात का इम्कान कि अगले 50 साल में इससे ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक आ जाए वो 10% है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस या प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एक्सीडेड इन 50 ईयर एक्सपोजर पीरियड। तो ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेट की गई है हैजर्ड की, जिसके मुताबिक ये मैप बनाया गया। ये बाय द वे डिज़ाइन बेसिस अर्थक्वेक कहलाता है। पूरी दुनिया में स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन इस हैजर्ड की डेफिनेशन पे आजकल किया जाता है, लेकिन ये एक डेफिनेशन है, आप इसको 2% भी कर सकते थे और चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बना दी गई है कि ये पीजीए का जो भी नंबर आएगा इसमें 10% चांस है कि इससे बड़ा भी आ सकता है अगले 50 साल में, लेकिन वो 10% हमने एक तरह का अपना रिस्क ले लिया है, क्योंकि अगर हम इस 10% को भी रिड्यूस करें, हम कहें कि नहीं 2% चांस होना चाहिए या 1% सिर्फ चांस होना चाहिए इससे बड़ा आने का, तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग नंबर हाई होगा, ठीक है, वो फिर 0.125 जी नहीं होगा। तो लिहाजा हम कभी भी एब्सोलूट नंबर नहीं देते, उसको साथ लिंक करते हैं कि इससे बड़ा आने का भी चांस है, लेकिन वो चांस 10% है या 2% है या 1% है, और साथ टाइम बताते हैं कितनी ड्यूरेशन में। 50 ईयर आमतौर पे बिल्डिंग की या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी की डिज़ाइन लाइफ मानी जाती है, तो लिहाजा 50 ईयर फिक्स कर लिया, वरना ये कुछ भी हो सकता है। सो अब डेफिनेशन यूं हुई कि मैं कहता हूँ x% प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एक्सीडेड इन y ईयर्स, ये अब मेरी प्रोबेबिलिस्टिक डेफिनेशन है साइज्मिक हैजर्ड की। इसको सामने रख के नंबर दिया जाएगा। तो अगर आप गैस करें, अगर मैं डेफिनेशन चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं 2% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स, यानी मुझे ऐसा नंबर दिया जाए कि जिससे ज्यादा आने का चांस अगले 50 सालों में सिर्फ 2% हो, तो वो नंबर इस 0.125 जी से बड़ा होगा या कम होगा? बड़ा होगा सर। एनी गैस? ये बिल्कुल बड़ा होगा, वो लेट्स से 0.5 जी होगा फॉर एग्जांपल। तो अब आपका चॉइस है, अगर आप एक डिज़ाइनर हैं, आप एक पॉलिसी मेकर हैं, या कोई भी पॉलिसी हैजर्ड से रिलेटेड बनाना चाहते हैं, तो अगर चाहें तो 0.125 यूज़ कर लें, लेकिन फिर रेडी रहें कि 10% रिस्क है इससे बड़ा आने का भी। लेकिन चाहें तो 0.5 जी यूज़ कर लें, बड़ा नंबर यूज़ कर लें, लेकिन उस वक्त में फिर एक्सेप्टेबल रिस्क कम हो जाएगा, 2% चांस हो जाएगा। तो यूं हम आजकल हैजर्ड को डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक डेफिनेशन में, x% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 इन y ईयर्स, ये कुछ भी हो सकता है। तो अब ये आपके डिसीजन मेकर पर है कि वो क्या डेफिनेशन यूज करे और फिर उसके मुताबिक नंबर होगा। तो ये हैजर्ड मैप्स हैं जो हैजर्ड असेसमेंट के नतीजे में बनते हैं। पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन या कोई भी हैजर्ड का पैरामीटर हो सकता है, आजकल तो कई नए फैंसी पैरामीटर्स भी आ गए हैं, बट पीजीए अभी भी सबसे ज्यादा यूज होता है। और पीजीए सिर्फ एब्सोलूट वैल्यू नहीं, बल्कि किसी भी उस डेफिनेशन के मुताबिक जो मैंने अभी बताया है। फिर किया यह जाता है कि आसानी के लिए, अब चूंकि देखें आप
के हज़ारों लोग हैं जो किसी भी साइट्स पर हो सकते हैं, तो बजाय कि मैप से वो अपनी साइट ढूंढते रहें और बाद में नंबर निकालते रहें मैप से, आसानी के लिए किया जाता है कि जिन एरियाज़ का नंबर मिलता जुलता होता है, एक ख़ास नैरो रेंज में होता है, उनको मिला के एक जोन बना दिया जाता है। और ये यूएस का हैज़र्ड मैप है, लेकिन ये अगली स्लाइड में ये यूएस का जोन मैप है। तो आपको सिर्फ अगर जोन नंबर पता है अपना, तो आपको वो रफ रेंज पता होगी पीजीए की कि मेरा पीजीए इस रेंज में है। तो देखें जोन 0 है, जोन 1 है, जोन 2A, 2B, जोन 3 और जोन 4। सबसे पहले यूएस ने ये क्लासिफिकेशन जोन की 1970s में अडॉप्ट की, अपने बिल्डिंग कोड में डाली, जिसको यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड कहते हैं। ये बिल्डिंग कोड कई और कंट्री में कोई और कंट्रीज में थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज हो रहा था। यानी बहुत से कंट्री सिर्फ डायरेक्टली यूएस को फॉलो कर रहे थे बजाय कि उनका अपना कोई कोड हो। तो ऑटोमेटिकली उन सारे कंट्रीज ने फिर यही क्लासिफिकेशन जोन 1, 2A, 2B, 3 और 4 ये अडॉप्ट कर ली। अपनी पीजीए की रेंजेस के हिसाब से अपने कंट्री को इन 5 जोन्स में डिवाइड कर दिया, और फिर हर जोन के लिए कुछ गाइडलाइंस कोड में रख दी कि हाई जोन में, अगर ज़ाहिर है 4 का मतलब है वेरी हाई जोन, 1 का मतलब है लोएस्ट। सो इस तरह के कुछ मैप्स हैं। देखें, ये पाकिस्तान का हैज़र्ड मैप है। सो पीजीए की वैल्यू कलर्स के ज़रिए दिखाई गई है। ये 4 डिफरेंट स्टडीज़ हैं, 4 डिफरेंट हैज़र्ड असेसमेंट्स हैं जिनकी आउटपुट शो हो रही है। तो चूंकि ये प्रोसेस अप्रॉक्सीमेट है, हैज़र्ड असेसमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये वेदर फोरकास्ट की तरह ही है कि पुराना डेटा जितना एक्यूरेट होगा, जितना उसको एक्यूरेट बनाने पे एफर्ट की जाएगी, या जो एनालिसिस की इजम्पशंस हैं उनको जिस भी तरह यूज़ किया जाएगा, उसके मुताबिक रिजल्ट्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इसमें इजम्पशंस होती हैं कदम कदम पे, वो फिर उस हिसाब से रिजल्ट्स भी वेरी कर सकते हैं। सो लिहाजा हर हैज़र्ड असेसमेंट स्टडी के रिजल्ट थोड़े थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको साइज्मिसिटी का ट्रेंड जो है वो पता चल जाता है कंट्री में। कौन से एरिया हैं जो हर स्टडी के मुताबिक हाई हैज़र्ड में आएंगे, कौन से एरिया हैं जो हर स्टडी के मुताबिक लो में आएंगे। समरी ये है कि अपर बलूचिस्तान, एजे के, नॉर्दर्न पाकिस्तान सारा हाई हैज़र्ड में आता है। जनूबी पंजाब और सिंध के एरियाज़ जो हैं वो रिलेटिवली लो हैज़र्ड में आते हैं। ये कुछ स्टडीज़ का कंपैरिजन है। ये वाला जो टॉप लेफ्ट पे मैप है, ये बिल्डिंग कोड में अभी भी इंक्लूडेड है, एग्जैक्टली इसी हालत में नहीं, बट नंबर्स इसके वही हैं। ये जिस स्टडी से मैंने ये कंपैरिजन लिया था, उन्होंने अपना मैप भी बनाया हुआ है। तो अभी एक ब्रेक करते हैं। आपका क्वेश्चन अगर है ब्रेक से पहले तो वो अभी पूछ सकते हैं आप, वरना फिर एक ब्रेक करेंगे और ब्रेक के बाद मैं साइज्मिक हैज़र्ड असेसमेंट का प्रोसेस ओवरऑल एक्सप्लेन करूंगा। एक में भी वो आधे पौने घंटे का एक सेशन होगा, उसमें अगेन मैं कहूँगा कि सिर्फ आपने ओवरव्यू सिर्फ उसका लेना है, आपने उसकी डिटेल में या कैलकुलेशंस को अभी परेशान नहीं होना उस हवाले से। सो एनी क्वेश्चंस इस सारी डिस्कशन में जो अभी हमने की है? सो आई थिंक कि क्वेश्चन नहीं है, सो हम ब्रेक करते हैं अभी। आई रिकमेंड कि आप वो जो प्लेलिस्ट आपको सर ने भेजी है उसमें कम से कम फर्स्ट 5 वीडियोस जो हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं वो ज़रूर देख लें, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और फिर उसके बाद अभी अगले सेशन में मैं कुछ थोड़ा सा एडवांस जाके प्रोसेस समझाऊंगा। सो ब्रेक कर लेते हैं अभी। आई थिंक 7:15 तक, 7:20 तक चलें, 7:20 पे दोबारा मिलते हैं और फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके सर। Okay, thank you, Dr. Fawad. We'll join you in 15 minutes. Thank you very जी much. ठीक हो गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू।